کہ اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل دوبارہ سے خراب ہونے لگا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری چھتوں سے پانی ٹپکنے لگے گا۔ میری امی بھی پریشان ہو چکی تھی۔ انہوں نے چھوٹے بھائی کو جلدی سے دکان پر بھیجا اور اسے وہاں سے شاپر لانے کے لیے کہا تاکہ وہ کمروں کی چھتوں پر ڈال دے اور پانی اندر نہ آ سکے۔ شام کا وقت تھا۔ یہ وقت میں نے ہی طے کیا تھا، کیونکہ دن کے وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی۔ نہ تو بندہ اچھے طریقے سے کھا سکتا تھا اور نہ ہی ہلا گلا کر سکتا تھا۔ جب میں نے امی سے کہا کہ ہم شام کے وقت بارات لے کر جائیں گے، تب امی نے بہت ڈانٹا، لیکن چونکہ میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور کوئی بھی کام میری مرضی کے بغیر نہیں کرتا تھا، اس لیے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، گڑیا تم فکر ہی مت کرو، جو کچھ تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ بھائی کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی، لیکن میری یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ میری دوست وہیں پر ہی بیٹھی ہوئی تھی جب بھائی نے یہ بات کہی تھی۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے مزے کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، کیونکہ اب بہت جلد تمہارے بھائی کو تمہاری بھابھی قابو کر لے گی۔ ابھی یہ تمہاری بات مان رہا ہے، لیکن بعد میں یہ تمہارا حال بھی پوچھنا گوارا نہیں کرے گا۔ دوست کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلائی اور کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور ہم دونوں بہن بھائیوں کے پیار کے بیچ میں کوئی تیسرا کبھی نہیں آ سکتا۔ میری بات سن کر دوست ہنسنے لگی اور کہنے لگی، بیٹا یہ بیوی ایسی چیز ہے کہ اچھے اچھوں کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ تمہارا بھائی تو ویسے بھی بہت شریف ہے۔ خیر میں تو بس اپنا خیال پیش کر رہی تھی، کیا پتا ایسا نہ ہو اور تمہارا بھائی واقعی اچھا ہو۔ یہ کہہ کر تو وہ وہاں سے اپنے گھر تیار ہونے کے لیے چلی گئی، لیکن میری پریشانی میں اضافہ کر گئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی امی کی طرف دیکھا، جنہوں نے آج بھی پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ دوسری نظر میں نے اپنے کپڑوں پر ڈالی۔ میں نے 1000 کا جوڑا لیا تھا، وہ بھی بہت منتوں مرادوں کے بعد۔ ہمارے گھر کے حالات کافی خراب تھے، یہی وجہ تھی کہ ہم بھائی کی شادی بھی دھوم دھام سے نہیں کر رہے تھے، بلکہ چند ہی لوگ بارات لے کر جا رہے تھے، کیونکہ دوسری طرف دلہن والے بھی کافی غریب تھے۔ مجھے اس غربت سے شروع سے ہی بہت چڑ تھی۔ جب میں گاؤں کی باقی لڑکیوں کو دیکھتی جو کہ اچھے لباس میں موجود ہوتی، انہیں دیکھ کر میرا دل جلتا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ سے شکایت کرنا شروع ہو جاتی کہ یا اللہ، ان کو اتنا سب کچھ دیا ہے، مجھے اتنا سب کچھ کیوں نہیں دیا۔ اسی وجہ سے میرے دل میں جلن اور حسد بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری دوست کی سالگرہ تھی۔ وہ چونکہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی وجہ سے وہ سالگرہ کو مناتے بھی تھے۔ اس نے مجھے اپنے گھر دعوت پر بلایا اور اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہی تھا۔ میں نے امی سے بڑی مشکل سے اجازت لی اور وہاں پر چلی گئی۔ وہاں کا تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گاؤں میں بھی اتنے زیادہ ماڈرن لوگ رہ سکتے ہیں۔ یہ میرا اس کے گھر میں پہلا چکر تھا۔ آج سے پہلے میں کبھی بھی اس کے گھر نہیں گئی تھی، چونکہ میں تھوڑی جلدی گئی تھی، اسی لیے وہ ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، گڑیا میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، شکر ہے تم آ گئی ہو، اب تم ہی مجھے تیار کرو گی۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنا جوڑا دکھایا جو اس طریقے سے اسٹینڈ پر پڑا ہوا تھا، لیکن استری نہیں ہوا تھا۔ وہ جوڑا دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ میرے دل میں آیا کہ کاش میرے پاس بھی ایسا جوڑا ہوتا۔ پھر مجھے اپنی دوست سے نفرت محسوس ہونے لگی، جس کے پاس اتنا سب کچھ موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے جلدی سے استری چلائی اور پھر اسی طرح جوڑے کے اوپر رکھ دی۔ اس کے بعد میں بھی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے میں نے اچھی طرح سے دیکھا تھا کہ کوئی آس پاس تو نہیں ہے، لیکن وہاں پر دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں اپنی دوست کی امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اس کی چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سن کر سارے ہی پریشان ہو گئے
اور بھاگے بھاگے وہاں پر گئے جہاں سے چیخ کی آواز آ رہی تھی، جبکہ میں تو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے چلانے کی وجہ کیا ہے۔ میں بھی چہرے پر فکر مندی کے تاثرات لیے وہاں پر چلی گئی۔ میری دوست مجھے اپنا جلا ہوا جوڑا دکھانے لگی اور کہنے لگی، یہ دیکھو گڑیا، پتہ نہیں کس نے یہ جوڑا جلا دیا ہے، یہ میرا سب سے پسندیدہ تھا، میرا بھائی میرے لیے لایا تھا، اب پتہ نہیں میں کیا پہنوں گی۔ اس کی بات سن کر اس کی امی تسلی دینے لگی اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، تمہارے پاس اور بہت سارے اچھے جوڑے ہیں۔ لیکن میری دوست کافی دل برداشتہ ہو گئی، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اپنی سالگرہ کو بھی نہیں منایا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اندر ہی اندر مجھے پتا بھی تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لیکن پھر میرے حسد نے ان تمام سوچوں کو ختم کر دیا۔ آج بھی بھائی کی شادی پر میں نے ایک نظر اپنے جوڑے کی طرف ڈالی، جو کہ حد سے زیادہ چمکیلا بھڑکیلا تھا اور بالکل بھی مہنگا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ سستا سا عام لباس لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے دوبارہ سے رونا آنے لگا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی میری دوست بھی تیار ہو کر آ چکی تھی اور اس نے بہت ہی پیارا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ شادی میرے بھائی کی تھی، لیکن مجھ سے زیادہ وہ پیاری لگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں دوبارہ سے حسد کا شکار ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے دوبارہ کسی قسم کا نقصان پہنچاتی، بارش رک گئی تھی اور امی جلدی سے ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب نکلو یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے بارش شروع ہو جائے، ہمیں 6 بجے سے پہلے وہاں پر پہنچنا ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے اپنی دوست کو اشارہ کیا اور ہم لوگ چل پڑے۔ چونکہ گھر زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے ہم لوگ پیدل ہی جا رہے تھے۔ راستے میں مجھے اچانک کسی انسان کی موجودگی کا احساس ہوا، یوں لگ رہا تھا کہ کوئی چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا اور دوبارہ سے چلنے لگی۔ ابھی تھوڑی آگے بڑھی ہی تھی کہ دوبارہ سے مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے دائیں جانب سے گزر رہا ہو۔ اس بار میں نے گردن موڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھا تو وہاں پر بہت ہی خوبصورت لوگ جا رہے تھے۔ ان سے زیادہ خوبصورت لوگ میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے بہت ہی قیمتی اور پیارے لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں بے ساختہ ان لوگوں کے لباس کو دیکھنے لگی، لیکن پھر اچانک ہی ایسا ہوا کہ وہ لوگ وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکلی۔ میرے چلانے کی آواز سن کر تمام لوگ پریشان ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، کیا ہو گیا ہے، تم کیوں چلا رہی ہو؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے گزرا ہوا واقعہ انہیں بتا دیا۔ میری بات سن کر میری دوست ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئی، یا پھر بھائی کی شادی کی خوشی کچھ زیادہ ہی تمہارے ذہن پر چڑھی ہوئی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ میں نے اسے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ میری دوست نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میری بات سنو، ہو سکتا ہے کہ تم نے انہیں دیکھا ہو، لیکن یہ نظروں کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب ان لوگوں کی باتیں سن کر مجھے غصہ آنے لگا، کیونکہ وہ مجھ پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے اور مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں ان لوگوں سے بحث کروں۔ لہٰذا میں نے دوبارہ اس قصے کا ذکر نہیں چھیڑا اور ان سے آگے بڑھنے لگی، لیکن راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچانک ہم ایک جگہ پر رک گئے۔ میں نے جب امی سے پوچھا کہ ہم یہاں پر کیوں رکے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں۔ امی کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ میری بھابھی کے گھر 100 سے زیادہ چکر لگا چکی تھی۔ اب تو انہیں زبانی راستہ یاد ہونا چاہیے تھا، لیکن بھائی کے ساتھ موجودگی کے باوجود وہ لوگ راستہ بھول چکے تھے۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایک تو بہت ہی شدید گرمی تھی اور دوسرا میری ٹانگیں بہت بری طرح سے دکھ رہی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں ایک بھی قدم اٹھا سکوں۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرا کزن کہنے لگا، اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں تمہیں بائک پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف گھورا
क्योंकि जब मैं घर से निकल रही थी तब मैंने उसे इस चीज़ का बोला था, लेकिन उसने मुझे ये कहकर खामोश करवा दिया था कि तुम्हारी शक्ल पर इस तरह की फरमाइशें अच्छी नहीं लगती। तब उसकी बात सुनकर मैं चिढ़ गई थी। अब जब हम आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुके थे, अब आकर वो ये फरमाइश कर रहा था, तो मैंने उसे चंद लम्हे घूरा तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने दोबारा मुझसे नहीं पूछा। थोड़ी देर तक तो हम वहीं बैठे रहे। उसके बाद अचानक ही भाई कहने लगा कि हम गलत रास्ते पर निकल आए हैं, हमने पिछले रास्ते पर दाएं जानिब मुड़ जाना था। मैंने भाई को कहा कि जो भी करना है जल्दी करें, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सारे ड्रामे बर्दाश्त कर सकूं। मेरी बात सुनकर भाई प्यार से कहने लगे, मुझे पता है मेरी गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, बस मैं रास्ता भूल गया था। अब तुम फिक्र मत करो, अब थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है, हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। भाई की बात सुनकर मैं दोबारा कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि मैं भाई से बदतमीजी नहीं करना चाहती थी। और फिर थोड़ी देर के बाद ही हम दुल्हन के घर पहुंच गए। उनके घर का हाल तो हमसे भी क्या गुजरा हुआ था। उनके घर पर तो दीवारें भी मौजूद नहीं थी। उन्होंने अपने घर के चारों तरफ अजीबोगरीब किस्म के टाट लगाए थे, जो घर की हालत को बहुत ही बुरा बना रहे थे। ये देखकर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि चलो हम उनसे तो बेहतर ही हैं। वहाँ के लोग भी बहुत अजीबोगरीब और बहुत ही बदसूरत थे, जो कि अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे। उनको देखकर मुझे कोफ्त हो रही थी। मैंने कमरे के अंदर जाते एक नज़र खुद को शीशे में देखा। बिलाशुबा उस वक्त मेरे चेहरे पर किसी किस्म का मेकअप नहीं था, लेकिन मैं बहुत हसीन लग रही थी। अपने आप को देखकर मैंने बेसाख्ता माशाअल्लाह कहा। मैंने जैसे ही ये लफ्ज़ अदा किया, मुझे अपने पीछे किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास हुआ, जिसने मेरे साथ ही माशाअल्लाह बोला। मैंने हैरत से पीछे पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था, लेकिन शीशे में मुझे एक बहुत ही प्यारे नौजवान का अक्स नज़र आ रहा था। उस नौजवान को देखकर मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैंने उससे पहले भी देखा हो। इससे पहले कि मैं दोबारा से पीछे पलटकर उससे कुछ पूछती, दाएं जानिब से मेरी कज़न आ गई और मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ पर खड़ी हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अंदर वो लोग कोई रस्म अदा कर रहे हैं, तुम्हारा वहाँ पर जाना ज़रूरी है, लिहाजा जल्दी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि दुल्हन की माँ नाराज़ हो जाए। कज़न की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैं कहने लगी कि दुल्हन की माँ क्यों नाराज़ होगी, उनके नाराज़ होने की कोई तुक नहीं बनती। जहाँ तक मेरे जल्दी या लेट होने की बात है तो ये मुझ पर छोड़ दो। मेरा जब दिल करेगा मैं जाऊँगी, और जब दिल करेगा नहीं जाऊँगी। अब मैं दोबारा से बदतमीज़ी का मुजाहरा कर रही थी, और मैं इस बात को अच्छी तरह जानती थी। हालांकि मेरी कज़न ने मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी और ना ही मुझसे बदतमीज़ी की थी, लेकिन इसके बावजूद मैं उससे बहुत ही सख्त लहजे में जवाब दे रही थी, ये जानते हुए भी कि वो इस किस्म के सख्त लहजे की हकदार नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी कज़न बुरे से मुंह बनाने लगी और कहने लगी, चलो ठीक है, जब तुम्हारा दिल किया तुम वहाँ पर आ जाना। उसके जाने के फौरन बाद मेरा ध्यान अपने पीछे खड़े नौजवान की तरफ गया। मैंने जब दोबारा पलटकर देखा तो इस बार वहाँ पर कोई भी नहीं था। न जाने वो कौन था और यहाँ पर क्या कर रहा था। उसकी शक्ल, सूरत और लिबास देखकर तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये वो उन गरीबों में से नहीं था। तो फिर वो कौन था? अब ये सवाल जो मेरे जहन में मचल रहा था। दूसरी तरफ उसका हुलिया और उसकी खूबसूरती देखकर मेरा दिल भी अजीब अंदाज में धड़कने लगा। मैं ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने लगी। वो मुझे बहुत अच्छा लग गया था। मैंने खुद को डांटा और कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं। तुम एक गरीब बाप की बेटी हो, जबकि उसके हुलिये को देखकर लग रहा है कि वो बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा वो सिर्फ तुम्हें टाइम पास के लिए इस्तेमाल करेगा और कभी तुम्हें कबूल नहीं करेगा। मैं खुद ही अपनी मर्जी से यह सब कुछ सोचने लगी थी, हालांकि मैं उसके बारे में एक चीज़ भी नहीं जानती थी। अब मैं वहीं उसी हालत में खड़ी थी जब अचानक मुझे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इस बार मैंने जल्दी से पलट कर देखा, लेकिन पीछे का मंजर देखकर मेरा मुंह कड़वा हो गया, क्योंकि वहाँ पर मेरी भाभी की माँ खड़ी थी, यानी मेरे भाई की सास। और मुझे शुरू से ही बहुत जहर लगती। उसे देखकर ना जाने क्यों मुझे गुस्सा आ जाता था। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकती थी। शायद उसकी वजह ये थी कि वो बहुत ही बुरी आदतों में मुलव्वस थी। उसकी आदतों को मैं भी जान चुकी थी। अब तो मैंने कई बार लोगों से ये भी सुना था
कि वो कोई अच्छी औरत नहीं है, बल्कि उसके दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। मैंने जब इस बारे में अपनी अम्मी को बताया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और समझाया कि इस तरह किसी की ज़ात पर बहतान नहीं लगाते। लेकिन मैं अम्मी को कैसे समझाती कि मैं बहतान नहीं लगा रही, बल्कि मैंने अपनी आंखों से उसको शाम के वक्त किसी और के घर से निकलते देखा था। और जिस तरह वो बातें कर रही थी उससे साफ जाहिर था कि वो मर्द को अच्छी तरह से जानती है और उनके आपस में ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। खैर, अम्मी ने तो मेरी बात पर पहले भी कभी यकीन नहीं किया था और ना ही बाद में करना था, इसलिए उन्हें समझाना फजूल था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हम कब से अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमने एक रस्म करनी है, इसलिए तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। उसकी बात सुनकर मैं गहरे अंदाज में मुस्कुराने लगी और उससे कहने लगी, दरअसल मैं खुद को आईने में देख रही थी और सोच रही थी कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और कहने लगी, इतना गुरूर भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। क्या तुमने वो कहानी नहीं पढ़ी हुई कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है? चलो अब जल्दी से अंदर चलो और रस्म करो। ये कहकर वो दोबारा से कमरे में चली गई। मैं ना चाहते हुए भी उसके पीछे गई। वो एक छोटा सा कच्चा कमरा था जहाँ पर पंखा नाम की कोई भी चीज नहीं थी। मुझे शदीद गर्मी का एहसास हो रहा था। मैंने एक नज़र दुल्हन के ऊपर डाली जो उस वक्त बहुत ही बुरी हालत में मौजूद थी। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था, जबकि उसके चेहरे का सारा मेकअप भी उतरकर खराब हो चुका था। वो उस वक्त दुल्हन कम चुड़ैल ज्यादा लग रही थी। उसकी हालत देखकर न जाने क्यों मुझे दुख होने लगा। बेचारी की पहली शादी थी और शादी भी इस कदर शदीद गर्मी में कि इंसान परेशान हो जाए। खैर, जो भी था, मैं उन लोगों के साथ मिलकर रस्म करने लगी। रस्म के दौरान ही मुझे अचानक वही लड़का दोबारा से नजर आ गया जिसे मैंने आईने में देखा था। इस बार उस लड़के को देखकर मैं अपनी नजरें नहीं हटा पाई कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा से गायब हो जाए। इस बार मुझे देखकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर शोर उठा कि लड़के सारे बाहर जाएं, हम लड़कियों ने हल्ला गुल्ला करना है। ये सुनकर लड़के परेशान हो गए और कहने लगे, ऐसे कैसे हल्ला गुल्ला करने देंगे, हम भी तुम लोगों के साथ रहेंगे। लेकिन लड़कियों ने जबरदस्ती उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। अब हम सब लड़कियां वहां पर मौजूद थी और सभी डांस के बारे में सोच रही थी। मैं चूंकि बहुत ही अच्छा डांस करती थी और मेरे डांस के बारे में लड़कियों को मेरी दोस्त की शादी पर पता चला था, जब उन्होंने मुझे बहुत सराहा था। अभी भी वो मुझे कह रही थी कि दोबारा से अपना जलवा दिखाओ। उनकी बात सुनकर मैं शर्मा गई। मुझे जिंदगी में पहली बार नाचते हुए शर्म आ रही थी और दिल भी अजीब सा हो रहा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि अगर मैंने नाचना शुरू कर दिया तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। अभी मैंने नाचना शुरू ही किया था कि अचानक मेरी नज़र उसी लड़के पर पड़ी जो उस वक्त कोने में खड़ा था। उसको वहां देखकर मैं एकदम ही रुक गई और हैरान रह गई कि जब लड़कियों ने सबको बाहर निकाल दिया तो इसका कमरे में क्या काम है। उसके साथ साथ मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसने मुझे नाचते हुए देख लिया है। मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन मुसलसल उसी की सिमत देख रही थी। मेरी हालत देखकर दोस्त पूछने लगी कि क्या हो गया है, तुम रुक क्यों गई हो, दोबारा से नाचना शुरू करो। दोस्त की बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और उसे बताया कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं थक गई हूँ और तुम्हें पता भी है कि थकावट से मुझे बुखार हो जाता है, लिहाजा बेहतर यही है कि मैं यहीं पर बैठ जाऊं। लिहाजा मैं जमीन पर बैठ गई। इसके साथ ही मैंने दोबारा पलटकर उस लड़के की तरफ देखा जो अभी भी उसी हालत में खड़ा था और मुझे देखकर पूरे सरार अंदाज में मुस्कुराया जा रहा था। मैंने अपनी कजन से पूछा कि पीछे खड़ा वो लड़का कौन है। मेरी बात सुनकर मेरी कजन ने जल्दी से देखा और मुझसे पूछने लगी, कौन सा लड़का, तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैंने जल्दी से उसकी तवज्जो लड़के की तरफ करवाई। वो अभी भी हैरत से दीवार को तके जा रही थी और मुझे कहने लगी, लगता है तुम पागल हो गई हो या फिर डांस तुम्हारे सर पर सवार हो गया है, इसीलिए तुम्हें हर जगह लड़के दिखाई दे रहे हैं। मैंने उसे कहा कि मैं सच कह रही हूँ, वाकई वहाँ पर लड़का मौजूद है और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो। मेरी बात सुनकर कजन ने तेजी से वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की को पुकारा और उससे पूछने लगी कि वो सामने खड़ा लड़का कैसा है। उसकी बात सुनकर लड़की ने मेरी कजन के चेहरे की तरफ ऐसा देखा कि जैसे उसने कोई अनोखा सवाल कर दिया और मजाक बनाते हुए कहने लगी, जाओ यार,
डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाओ। उसकी बात सुनकर मेरी कज़न बुरे बुरे मुंह बनाने लगी और कहने लगी, देखो तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। जब मैं तुम्हें कह रही थी कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है तो तुम क्यों एक ही जिद लगा कर बैठी हुई हो। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वाकई वहां पर कोई है। मैंने दोबारा वहां पर देखा तो वो लड़का दरवाजे से बाहर निकल रहा था। मैंने अब अपनी कज़न को हिलाया और उससे कहने लगी, देखो वो अब इस वक्त कमरे से बाहर जा रहा है। उस वक्त मेरी दोस्त ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझे कहने लगी, मैंने अब किसी तरफ नहीं देखना और ना ही मुझे इस बारे में जानने का कोई शौक है। अगर वहां पर वाकई कोई लड़का मौजूद है तो तुम शौक से देखो, लेकिन खुदा के लिए मुझे बार बार मत बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ और ना ही मुझे पागल बनना है। मुझे सिर्फ यही चीजें नजर आती हैं जो मेरे सामने मौजूद होती हैं। मैं उन चीजों को नहीं देख सकती जो मौजूद ही ना हो। उसके बाद हम काफी देर तक वहां बैठे रहे, लेकिन अब मेरा दिल वहां नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने किसी रस्म में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि अब मेरा दिल सिर्फ उसी लड़के की तरफ अटका था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन था और सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रहा था। इस बार मैंने फैसला किया कि अब अगर वो मुझे नजर आया तो मैं उसके पास जाकर इस बारे में सवाल करूंगी। दूसरी तरफ मेरा दिल भी घबरा रहा था और अजीब व गरीब वहम भी हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई और ही मखलूक हो और मुझे नुकसान पहुंचा दे। लिहाजा उसके पास जाने का आइडिया ठीक नहीं है। बेहतर यही है कि जो कुछ हो रहा है उसे चलने दो। तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो और अपने काम में लगी रहो। काफी देर तक मैं खुद से यही जंग करती रही। जब वहां से दुल्हन को ले जाने की बारी आई तो वो लड़का मुझे दोबारा नजर आ गया, लेकिन उस वक्त वो घर के पिछले हिस्से की तरफ जा रहा था। उसको घर के पिछले हिस्से की तरफ जाता देखकर मैं भी तेजी से पीछे चल दी। मैं नहीं जानती थी कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। मेरा दिमाग बहुत अजीब हो चुका था। वो खुद ही फैसले ले रहा था। मैं उसे रोकना चाह रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। यूं लग रहा था जैसे मेरे दिमाग को कोई और कंट्रोल कर रहा हो। मेरे कदम तेजी से पीछे की तरफ बढ़ने लगे और फिर थोड़ी दूर जाकर मैं रुक गई, क्योंकि वो लड़का भी रुक गया था। उसे देखकर मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। इसके साथ ही मेरे जिस्म को झटका लगा और मैं आजाद हो गई, यूं जैसे किसी ने मुझे अभी अभी छोड़ा हो। मैं तेजी से जमीन से उठी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि मैं उसके करीब जाती और उसको अपनी तरफ पलटाती, अचानक ही वहां पर मेरी कज़न आ गई। मुझे घर के पिछले हिस्से की तरफ देखकर वो कहने लगी, गुड़िया क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो, या सच में तुम्हारा दिमाग चल गया है? तुम इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? उधर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर तुम कब्रों की बेहुरमती करती फिर रहे हो। कज़न की बात सुनकर जब मैंने नीचे देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि मैं एक कब्र के ऊपर खड़ी थी। मैं तेजी से कब्र से नीचे उतरी। मेरा दिल दोबारा से दहशत ज़दा हो गया। मैंने खौफजदा नजरों से अपनी कज़न की तरफ देखा और उससे कहने लगी, मैं नहीं जानती कि मैं यहाँ पर क्यों आ गई हूँ, बल्कि एक अजीब सी कुव्वत थी जो मुझे यहाँ पर खींच कर लाई थी। इसके साथ ही यहाँ पर एक लड़का मौजूद था जो मेरी तरफ पीठ किए खड़ा था, लेकिन फिर अचानक तुम आ गई और वो लड़का वहां से गायब हो गया। मेरी कज़न ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और कहने लगी, खुदा के लिए बस कर जाओ, बस कर जाओ। अब मजीद एक लफ्ज भी मत कहना, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम ऐसी बातें कर रही हो जिन पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब ये कहानियां बनाना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो। अब अगर तुमने दोबारा से मेरे सामने किसी भी लड़के का नाम लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अजीब पागलों वाली हरकतें कर रही हो और हमें भी पागल बना रही हो। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और तकरीबन घसीटती हुई मुझे दोबारा घर वालों की तरफ ले गई। वहां पर अम्मी पहले से ही गुस्से से लाल खड़ी थी, मेरी तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो मुझे 2 थप्पड़ लगाते, भाई दरमियान में आ गया और अम्मी को कहने लगा, छोड़ दें, छोटी है, माफ कर दें, पहले ही बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। और फिर इस तरह हम बारात लेकर अपने घर वापस आ गए। लेकिन बारात के साथ साथ मैं अपने साथ सोचू का अंबार भी लेकर आई थी, एक दहशत भी लेकर आई थी जिसने मेरे दिल को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके साथ साथ मैं एक ऐसे इंसान का वजूद लेकर आई थी जिसका अंदाजा मुझे रात के वक्त हुआ। चूंकि हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे
एक कमरा तो अम्मी ने भाभी और भाई को दे दिया था, जबकि दूसरे कमरे में मैं और अम्मी ही मौजूद थे। काफी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं चाह कर भी आराम नहीं कर पा रही थी। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी चारपाई हौले से उठाई हो। ये देखकर मेरा सांस यकदम रुक गया। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं तेजी से चारपाई से उठी और नीचे झांकने लगी। अचानक मेरी नज़र ज़मीन पर लेटे उस लड़के पर पड़ी जो उस वक्त मुस्कुराती नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसे उस वक्त चारपाई के नीचे लेटा देखकर मेरी सांसें उखड़ने लगी। मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। अगले दिन जब मुझे होश आया तब अम्मी मेरे करीब मौजूद थी। वो मेरे सर पर पानी की पट्टियां रख रही थी। उस वक्त मैं शदीद बुखार में तप रही थी। अम्मी चेहरे से बहुत परेशान लग रही थी। बार बार कह रही थी कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि नज़र की दुआ पढ़ लेना। मेरी इतनी खूबसूरत बेटी को न जाने किसकी इतनी बुरी नज़र लग गई है। अम्मी की बात सुनकर मैं उन्हें बताना चाह रही थी कि ये नज़र का खेल नहीं बल्कि ये तो कोई और ही खेल है जो मेरी ज़िंदगी में शुरू हो गया है, लेकिन मैं चाह कर भी एक लफ्ज़ अदा नहीं कर पा रही। यूं लग रहा था कि किसी कुव्वत ने मेरी जुबान को लगाम दे दी हो। काफ़ी देर तक मैं उसी हालत में लेटी रही। उसके बाद अम्मी कमरे से बाहर चली गई। अम्मी को मैं ये भी नहीं कह सकी कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बिस्तर पर लेटी ही थी जब दीवार पर लगी चंद तस्वीरें हिलने लगी। वो तस्वीरें मेरे कज़न की थी जो उस वक्त बाबा के साथ खड़ा था, जिसका अम्मी ने बचपन में ही मेरे लिए रिश्ता मांग लिया था। लेकिन अब चूंकि उनके हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे, इसी वजह से उन लोगों ने दोबारा इस बारे में बात नहीं की थी। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरे कज़न ने वहीं शहर में कोई अपने लिए प्यारी सी लड़की देख ली है, इसलिए अब वो मुझे भूल गया होगा। अचानक ही वो तस्वीर ज़मीन पर गिरी और टूट गई। ये सब देखकर मैं परेशान हो गई थी। दोबारा से मेरे कान में सरगोशी हुई। वो बहुत ही प्यारी मर्दाना आवाज़ थी। आवाज़ में अजीब सी दिलकशी और खुमारी थी। चंद लम्हे तो मैं उस आवाज़ में खो गई। लेकिन जब मुझे इस बात का महफूम पता चला तब मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो जो कोई भी था मुझसे कह रहा था कि अब से उसका तुम्हारी ज़िंदगी में खेल ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया हूँ। अब तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा, लिहाजा अपनी ज़िंदगी को मेरी मर्ज़ी से गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। फिर यकदम ही आवाज़ आना बंद हो गई। मैं तेज़ी से बिस्तर से उठी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। अब जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था उसे झुटलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैं तेज़ी से उठी और भागती हुई अम्मी के पास गई, उनके कदमों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इस तरह रोता देखकर अम्मी परेशान हो गई और मुझे उठाते हुए कहने लगी, अरे क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई? अम्मी की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। फिर थोड़ी देर पहले होने वाले वाक़ये को टूटे फूटे अंदाज में सुना दिया। मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया और मुझसे प्यार करते हुए कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से तुम्हें अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं, वरना हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस घर में तो हम सदियों से रह रहे हैं, आज तक हमारे साथ ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। तुम डरो नहीं, बस अपने जहन को तमाम फजूल सोचों से आज़ाद करो, तुम्हें बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं होगा। ये कहकर अम्मी ने दोबारा मुझे कमरे की तरफ धकेला और मुझे आराम का मशवरा देने लगी। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी से आराम, चैन, सुकून नाम के अल्फाज उड़ चुके थे। अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ टेंशन मौजूद थी। अब एक और परेशानी जो मुझे खाई जा रही थी वो ये थी कि आखिर उसने मेरे कज़न की तस्वीर ज़मीन पर क्यों गिराई थी। जब मैं अपने कमरे में गई और दोबारा से तस्वीर देखने लगी तो ये देखकर मेरा दिल दहल गया कि मेरे कज़न की तस्वीर पर उस वक्त एक क्रॉस का निशान लगा हुआ था। उस क्रॉस के निशान का मतलब एक बार मैंने अपनी दोस्त से पूछा था तो उसने मुझे बताया था कि वो लोग लगाते हैं जो किसी को कत्ल करना चाहते हैं। वो क्रॉस का निशान इसलिए लगाते हैं ताकि वो उसका काम तमाम कर सके। तब अपनी दोस्त की बात सुनकर मुझे बहुत मज़ा आया और तजस्सुस भी हुआ था, लेकिन आज वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा था तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी जो हो रही थी। वो इस वजह से थी कि बेचारे कज़न की ज़िंदगी मेरी वजह से मुश्किल में फंसने जा रही थी। बिलाशुबा हम दोनों के दरमियान कोई भी मजबूत रिश्ता मौजूद नहीं था,
लेकिन अभी भी एक ज़ुबानी रिश्ता मौजूद था, वो ये कि खाला बहुत जल्द मेरे कज़न के लिए दोबारा मेरा हाथ मांगने के लिए आएंगी। मैं जानती थी कि ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से सोच कर बैठी हूँ। हकीकत को कोई भी नहीं जानता और ना ही किसी को इल्म है कि आगे मुस्तकबिल में जाकर क्या होगा, पर इंसान की फितरत है कि वो मंसूबे बनाता रहता है। लिहाजा मैं अभी से मंसूबा बंदी के काम में ही मसरूफ़ थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे जाकर मेरे साथ क्या होने वाला है। दिन तेज़ी से गुजरते जा रहे थे। उसने मेरी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया था, क्योंकि अब मैं कहीं पर भी जाती तो वो पहले ही वहाँ मौजूद होता, मुझे अजीब व गरीब नज़रों से देखता रहता। मैं जब भी उसके पास जाती या उससे बात करने की कोशिश करती तो वो अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता और फिर थोड़ी देर के बाद मेरे कान में सरगोशी कर जाता कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। जिस दिन मुझे इस चीज़ की इजाज़त मिल गई उस दिन के लिए तुम अपनी खैर बना लो। उसकी इस बात का मुझे बहुत ही गुस्सा आता। मैं कहती थी कि उसे खरी खरी बातें सुनाऊंगी, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आता था खौफ और दहशत से मेरा दिल भर जाता। बेशक मेरे जहन में हज़ारों तरह की बातें होती, हज़ारों तरह के सवालात होते, लेकिन उसके खौफ की वजह से मैं उससे कभी कुछ पूछ नहीं पाते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। उस दिन मैंने मोहल्ले के एक लड़के से बात कर ली। वो लड़का भी मेरी उम्र का नहीं था, बल्कि मुझसे काफ़ी छोटा था। मैं उसके साथ खड़ी कुछ बातें कर रही थी और उसे कुछ हिदायत दे रही थी कि अचानक ही वो पेट पकड़कर ज़मीन पर गिर गया। उसको पेट पकड़ता देखकर मैं परेशान हो गई और उससे पूछने लगी कि क्या हो गया है। उसने कराहते हुए कहा कि किसी ने मेरे पेट पर लात मारी है। पहले तो उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, फिर थोड़ी ही देर के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये सब काम करने वाला कौन है। मैंने एक नज़र अपने दाएं जानिब देखा, क्योंकि वहाँ पर जिनजाद मौजूद था और मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसको देखकर मैंने बुरा सा मुंह बनाया और जल्दी से उस लड़के को उठाया। मैं नहीं जानती थी कि उस लड़के को उठाकर मैं अपने ऊपर कितना बड़ा जुल्म करने जा रही हूँ। अभी भी मैंने उसे हाथ लगाया ही था कि मुझे यूं महसूस हो कि किसी ने मेरे बाजू पर एक जोरदार कूड़ा मारा हो। मेरे बाजू पर वाज़ेह निशान पड़ गया था। एक जोरदार चीख मेरे मुंह से निकली। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर मोहल्ले का लड़का भी घबरा गया और मुझे कहने लगा, बाजी क्या हो गया है, आप ठीक तो हैं? अचानक उसने मेरे बाजू की तरफ देखा तो वो डरते हुए कहने लगा, बाजी न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि इस वक्त हम लोग एक गलत जगह पर खड़े हैं। शायद हम किसी और मखलूक को परेशान कर रहे हैं, इसलिए बेहतर यही है कि जल्दी से यहाँ से चले। ऐसा ना हो कि वो हमें जान से ही मार दें। ये कहकर वो तो वहाँ से भाग गया, लेकिन मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई, क्योंकि मेरे हाथ में उस वक्त शदीद तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। आंसू तेज़ी से टूटकर मेरी आंखों से बह रहे थे। मुझे ज़रा भी सब्र नहीं आ रहा था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी से इतनी शदीद मार पड़ी थी। चूँकि मैं अपने भाई की सबसे लाडली थी, इसी वजह से अम्मी भी मुझे डांटती नहीं थी और ना ही मुझे मारती थी। अगर भाई घर पर मौजूद ना होता तो तब अब्बा मुझे अम्मी की मार से बचा लेता था। इसी वजह से मुझे कभी भी अम्मी से मार नहीं पड़ी थी। लेकिन आज इतना वक्त गुजरने के बाद जब मुझे इतनी शदीद मार पड़ी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे एक लम्हे के लिए भी सब्र नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे आंसू साफ किए हों। मैंने नज़र उठाकर देखा तो उस वक्त वो लड़का मेरे सामने बैठा घुटनों के बल झुका हुआ था। उस वक्त वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसकी सब्ज आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं ज़्यादा देर तक उसकी आंखों में देखती रही तो मैं अपना होश खो बैठूंगी। इस वजह से मैंने तेज़ी से उससे नज़रें फेर ली। मैंने उससे सवाल किया कि तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से मेरे बाल कान के पीछे अड़सने लगा। ये सब देखकर मैं शर्मा गई। आज से पहले मैं कभी किसी मर्द के इतना करीब नहीं गई थी। अब ना सिर्फ वो मेरे करीब मौजूद था, बल्कि अजीब व गरीब हरकतें भी कर रहा था। और फिर मेरे देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गया। हमेशा की तरह उसने आज भी मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। यही चीज़ मुझे हमेशा गुस्सा दिलाती। मैं कहती थी कि या तो वो मेरी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर ही निकल जाए या फिर अपने बारे में तफसील से मुझे कुछ बता दे, लेकिन वो था कि दोनों बातों को ही नहीं मानता था।
वो तो ना मेरी जिंदगी से जा रहा था और ना ही अपने बारे में कुछ बता रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसने मेरे सामने चुपका कोई रोजा रखा हो। दूसरी तरफ मेरे हाथों की तकलीफ 2 दिन गुजरने के बावजूद खत्म नहीं हुई। उन 2 दिनों में मैंने उस जिनजात को एक बार भी नहीं देखा। मुझे उसे देखने की आदत हो गई थी। अब मेरा वक्त ही नहीं गुजरता था। मैं बार बार छत पर जाती या ऐसी जगह पर जाती जहाँ पर मैं अकेली होती, क्योंकि वो वहीं पर आता ज्यादातर जहाँ पर मैं तन्हा मौजूद होती। एक अजीब सी बेचैनी थी जो उस वक्त मेरे पूरे जिस्म पर सवार हो गई। और फिर थोड़ी ही देर के बाद मेरी खाला हमारे घर आ गई। खाला को अपने घर में देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि मेरी ये वही खाला थी जिन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपनी बात को सच साबित करेंगी, क्योंकि वो अपने वादे से मुकरने के नाम से बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। अब जबकि वो अपना वादा पूरा कर रही थी तो ना जाने क्यों मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही। मुझे यकीन हो गया था कि अब मेरी किस्मत संवर जाएगी। अब मैं वो सब कुछ कर लूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि न सिर्फ मैं अपने बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने जा रही हूँ। खाला हमारे घर तो आ गई थी, वो मेरे कजिन को भी ले आई। लेकिन अब मसला ये था कि उन्हें ठहराना कहाँ था, क्योंकि मेरी खाला तो हमेशा से ही एसी में रहने की आदी थी, जबकि हम गांव वालों के हालात ऐसे थे कि हमें पंखे की ठंडी हवा भी नसीब नहीं होती। वो भी इस वजह से कि दिन के वक्त शदीद तपती हुई गर्मी होती, पंखा गर्म हवा देता था और रात के वक्त बिजली मौजूद नहीं होती थी। जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। इस दौरान उस जिन जात का मेरे साथ छुपन छुपाई का खेल भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। जबकि खाला मेरा रिश्ता लेकर आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं 1 ही महीने के अंदर अंदर दोनों की शादी करना चाहती हूँ। तब मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। दूसरी तरफ खाला भी बहुत खुश नजर आ रही थी। मेरा कजन भी बहुत खुश था। हम लोग सहन में बैठे यही बातें कर रहे थे जब अचानक किसी ने मेरे कजन का गला पकड़ लिया, उसे हवा में उठा लिया। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये वही जिनजाद हैं। मैं चिल्लाने लगी और कहने लगी, खुदा के लिए मेरे कजन को छोड़ दो। लेकिन वो इस कदर जालिम जिनजाद था कि उसने मेरे कजन का गला नहीं छोड़ा और मेरे कजन को जान से ही मार दिया। जवान बेटे की मौत अपनी आंखों के सामने होता देखकर खाला की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने उस सदमे को इतना ज्यादा दिल पर लिया कि उन्हें हार्ट अटैक आया और वो भी मौके पर ही दुनिया से चली गई। थोड़ी देर पहले जिस घर में खुशी फैली थी, शादियाने बजने के लिए तैयार थे, वहां पर एकदम से सोग फैल गया था। मेरी अम्मी ने फटी फटी नजरों से मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछने लगी कि ये सब क्या है। मैंने अम्मी को रोते हुए बताया कि ये सब कुछ वही है जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, लेकिन तब आपने मुझे कहा था कि गुड़िया, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये सब देखकर अम्मी ने अपने बाल दोनों हाथों में जकड़ लिए और जोर जोर से बाल खींचते हुए चिल्लाने लगी। उनकी हालत पागलों वाली हो गई थी। और क्यों ना होती, उनके देखते ही देखते न सिर्फ उनका भांजा बल्कि उनकी जान से अजीज बहन भी इस दुनिया से चली गई थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे। और फिर मेरे खालू को ही वही सब कुछ बताया गया जो कि सच था। ये सुनते ही मेरे खालू की आंखें एकदम लाल हो गई और मुझे कहने लगे कि मैं उस जिनजात से सबका बदला जरूर लेकर रहूंगा। जिन दिनों मेरी अपने खालू से बात हुई थी वो खाला की मौत के 4 महीने बाद का जिक्र है। तब खालू हमारे घर में कुछ अरसे के लिए रहने आए थे, क्योंकि उनकी मेरी अम्मी से बहुत बनती थी। वो मेरी अम्मी से हर तरह के मौजू पर बात कर लेते थे। इसके अलावा वो अम्मी के कज़न भी थे और बचपन के दोस्त भी थे। कुछ दिन बाद वो चले गए। उसके बाद मेरी ज़िंदगी मामूल पर आ गई। दोबारा से उस अजीब व गरीब लड़के को देखना, लेकिन उसका मेरे पास ना आना, ये सब मुझे बहुत परेशानी में मुब्तला कर रहा था। दूसरी तरफ मेरी अम्मी मुसलसल इन्हीं कोशिशों में लगी थी कि वो किसी तरह एक अच्छे से आमिल से राब्ता कर ले, और फिर एक दिन मौका मिल ही गया था। उस दिन मेरे मामू घर के अंदर दाखिल हुए और मुझे कहने लगे कि जल्दी से एक मोमबत्ती लाओ। मामू की बात सुनकर मैं मोमबत्ती ले आई। उन्होंने गोल दायरा बनाया। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने दिल में कुछ पढ़ा, जिसकी वजह से वो जिनजात उनकी नजरों के सामने हाजिर हो गई। जिनजात को देखकर मामू ने पूछा कि तुम कौन हो, इस लड़की से क्या चाहते हो। उसने मामू से कहा कि मैं एक जिनजात हूँ
इस लड़की को अपनी मिल्कियत समझता हूँ और हमेशा से ही इसे अपनी गुलामी में रखना चाहता हूँ। जो भी इस लड़की की तरफ देखने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सब सुनकर मामू ने अपने पास रखा हुआ पानी उठाया और उस जिनजात पर छींटे मारने लगे, जिससे वो तकलीफ से तड़पने लगा और कहने लगा, बस कर दो खुदा के लिए, बस कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मामू पहले ही उसे जलाना चाहते थे, उससे अपनी बीवी और बेटे की मौत का बदला लेना चाहते थे। अभी तो उन्हें मौका भी मिल गया था। उन्होंने कबीले के सरदार को अपने सामने हाजिर किया और उसे जिनजात के करतूतों के बारे में बताया। कबीले के सरदार ने साफ साफ कह दिया कि ये जिनजात सरकश हो चुका है, लिहाजा ये जिनजात उन लोगों में से नहीं है। चनाचे आप इसके साथ जो मर्जी सलूक करें, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। और फिर मामू ने थोड़ी ही देर बाद उस जिनजात को जला दिया। और उसी दिन मुझे पता चला कि खाला की मौत के बाद मामू भी रूहानी इल्म हासिल करने लगे थे और उन्होंने ये अमल भी ये कामिल से सीखा था। जिनजात के जलने के फौरन बाद मामू ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे कहने लगे कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है। पहले मेरे बेटे के लिए मैं तुम्हारा हाथ मांग रहा था, लेकिन अब अपने एक दोस्त के बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगूंगा। मुझे यकीन है कि तुम उनके म्यार पर पूरा उतरोगी और अपने शोहर को हमेशा खुश रखोगी। फिर उसके बाद मेरी शादी एक बहुत ही प्यारे और अमीर शख्स से हो गई। मैं खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरी जितनी भी ख्वाहिशें थी वो सब पूरी हो चुकी।